And when we decided to discuss that particular practical social problem of whether and what is the perception, what people are thinking about COVID-19 vaccination. So that's what we have found. It's a contemporary issue that everyone should understand. And this kind of research will be also helpful for our understandings, to develop our own understandings. Right? This may be useful for hospitals. This may be useful for government. If we really do it on a large scale, then government, this research will be also useful for research, government also, isn't it? तो किसके लिए यूजफुल होगा? You have to understand the utility, that is usefulness of your research, when we think about the topic, when we think about whatever we are going to do for conducting that research study, right? जब टॉपिक के बारे में सोचेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, किसके लिए यूजफुल है, हु इज गोइंग टू बी benefited by this particular research study. So who is going to be benefited for our research? Government at large. Uh, then maybe people working in the vaccination drives, they will get benefited because they will get to understand उनको कैसा behave करना चाहिए. They will get to know that whether the people are satisfied, whether the people are happy with the process they are adopting for vaccination delivery and all, right? So usefulness किसका है? Think of this particular point. Utility, where is the utility? Who is going to be benefited by your study? कि आपका स्टडी करना क्यों है? By what reason? राइट क्यों करना है? कुछ काम का है, कुछ यूजफुल है, किसी के लिए काम में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो हम स्टडी करेंगे, राइट? सो यू विल आस्क मी, सर, व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग द परसेप्शन? परसेप्शन सुन पता करके हम क्या होने वाला है हमारा? व्हाई वी आर नोइंग? आइदर, हाँ, एक था सेटिस्फेक्शन पता करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाने को इजी आ जाएगा, इजंट इट? सेटिस्फेक्शन से क्या होगा? अगर आपको पता चलेगा सेटिस्फाइड है नहीं है, किस एस्पेक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, जो भी 7 स्टेप्स है, उस 7 एलिमेंट्स के किसके बारे में कितना सेटिस्फेक्शन है, वो अगर पता चलता है तो यू कैन डिजाइन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ योर मार्केटिंग मिक्स, राइट? तो सेटिस्फेक्शन के बारे में पता चलने से बहुत कुछ हो सकता है. वैसे परसेप्शन के बारे में पता चलने से क्या होगा, बताओ क्विकली. व्हाट विल हैपन इफ यू नो अबाउट परसेप्शन? सर परसेप्शन अगर कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए सही रहेगा. What way, in which marketing function this perception understanding will be helpful? Let me tell you about satisfaction studies where that can be implemented. By knowing the satisfaction of your customers for COVID-19 vaccines, you will get to know that they are not happy with the pricing, they are not happy with the physical evidence, they are not happy with something. So what you will do, you will improve your business, you will improve your product, you will improve your product delivery, you will improve all marketing strategies. So knowing satisfaction will help you to improve. क्या? Knowing the satisfaction of your consumers for your product will help you to improve and decide your marketing strategies accordingly. अगर प्रोडक्ट में सेटिस्फाइड नहीं है तो आप प्रोडक्ट पे काम करोगे, प्राइसिंग में सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट प्राइसिंग पे काम करोगे. अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सेटिस्फाइड है, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस में इशू है, तो यू विल वर्क ऑन दैट, right? So by knowing the satisfaction of your consumers, you will get to know that what are the areas of improvement, what are the areas of your strength of business, right? Similarly, by knowing perception, क्या हो सकता है? आप लोग दिमाग चलाओ यार. मैं like I am asking you very simple question and I want answer from everyone. Like 6 है तो 6 लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट सबको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ. सेटिस्फैक्शन का पता करा के आपको स्ट्रेटेजीज बना पाओगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चल जाएगी, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पता चल जाएगी. सिमिलरली अगर आप परसेप्शन का स्टडी करोगे तो क्या होगा, बताओ? सो हम लोग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ले आएंगे अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन. नो, हाँ, वो प्रोडक्ट में चेंजेस आप ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रोडक्ट में चेंजेस आप कब ला सकते हो? जब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करोगे, राइट? तो परसेप्शन कहाँ काम में आता है? वेयर द परसेप्शन स्टडीज आर यूजफुल. मैं आपका परसेप्शन अगर चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर व्हाट कस्टमर नीड्स एक्चुअली, वो जानना पड़ेगा पहले. सर रिसर्च करना होगा कस्टमर्स लोगों के. नो, ठीक है ना, मैं वही बोल रहा हूँ. हमने अगर रिसर्च कर लिया, परसेप्शन का रिसर्च कर लिया हमने, और हमको पता चल गया है परसेप्शन ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो आगे क्या इंप्लीमेंट करेंगे? लाइक सेटिस्फैक्शन इंप्लीमेंट करने से आपको प्रोडक्ट में इसमें उसमें चेंज करो. परसेप्शन की बात होती है. परसेप्शन इज बिफोर योर
before the consumer gets that product. See, perception is intellectual thing, mental, psychological thing, right? It is attitude, it is a belief of your customers to look towards your product, isn't it? आपको अगर नेगेटिव परसेप्शन में कस्टमर्स को पॉजिटिव परसेप्शन में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन करना पड़ेगा, इसको इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी, राइट? सो एंड परसेप्शन मतलब उसका नॉलेज में इशू है. अगर उसके नॉलेज में इशू है तो यू हैव टू इंप्रूव दैट नॉलेज सो दैट ही बिकम द कस्टमर. By knowing perception, you will get to know that what is the image of your product in the market, what is the image of your product in the consumer's mind, that is what is positioning you are doing, right? Perception is related to positioning. For example, do you think before you purchase Parle biscuits? Do you give a single thought before you purchase Parle biscuit? Absolutely not, right? कोई जरूरत ही नहीं, जाओ ले लो अगर ग्लूकोज बिस्किट चाहिए तो. Similarly, if you get a glucose biscuit of Tiger and Patanjali together, what do you think? क्या सोचोगे? डायरेक्ट परचेस करोगे पतंजलि का बिस्किट या टाइगर का बिस्किट? No, sir. First of all, we will think about that. सोचोगे कि यार पार्ले क्यों नहीं है? अगर पार्ले नहीं है तो मुझे लेना चाहिए क्या? लेना चाहिए तो कितने में है? कितने में है तो फिर पैकेट उल्टा पुल्टा करके देखोगे उसके ऊपर क्या लिखा है, ग्लूकोज कितना है, क्या है, वो है. चाहे तो छोटा पैकेट दो, बोलोगे पहले टेस्ट करके देखते, फिर नेक्स्ट टाइम हम बड़ा पैकेट लेंगे, राइट? बट पार्ले का 1-2 किलो का पैकेट लेने के लिए भी आप सोचोगे नहीं. आप नहीं खाओगे तो कोई तो खाएगा, कोई नहीं खाएगा तो कोई खाएगा, घर में खत्म हो ही जाएगा वो. दैट यू आर श्योर. You will at least find 1 or 2 Parle lovers in your family, right? So that is perception, that is image of Parle biscuit. So if you want to change the image of your product, अगर कस्टमर्स, आपने रिसर्च किया, इतने सारे वेरिएबल हमने निकाले 7 एलिमेंट्स पे, और बाद में हमको पता चला कि कस्टमर का परसेप्शन तो फिजिकल एविडेंस के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में भी कस्टमर कंफ्यूज्ड है. दे आर थिंकिंग कि कोवैक्सीन इज बेटर, कोविड इज बेटर, ये बेटर है, वो बेटर है, ये महंगा है, ये सस्ता है, इसका कंटेंट अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा नहीं है. ये सब वेरिएबल पे पता चलेगा आपको रिसर्च करने के बाद, राइट? बट दैट इज नॉट द फैक्ट, दैट इज ओनली अ परसेप्शन ऑफ योर कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन देयर ओन नॉलेज, राइट? सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर थॉट प्रोसेस by knowing the perception. So you will improve your image, you will improve your positioning in the market, you will improve your communication about your product to the customers by knowing their perception. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो जिस एरिया में परसेप्शन का रैंक अच्छा आएगा, जिस एरिया में 5 पॉइंट स्केल पे मीन अच्छा आएगा, जिस एरिया में स्कोर ज्यादा आएगा, उस एरिया में आपको सोचने का जरूरत नहीं है. फॉर दैट योर कस्टमर्स आर लाइक, आई मीन जिस एरिया में, मतलब जिस पॉजिटिव सेंटेंस जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जहां पे जो तरीके का स्कोर आएगा, उस स्कोर के हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं कि उसका सेटिस्फेक्शन पॉजिटिव है, निगेटिव है. निगेटिव है तो वी हैव टू कम्युनिकेट दैट पर्टिकुलर थिंग टू ऑल द कस्टमर्स, सेइंग दैट नहीं भाई ऐसा नहीं है. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कोवैक्सीन इज मोर एक्सपेंसिव देन कोविशील्ड, राइट? तो ये परसेप्शन है, फैक्ट भी है, राइट? सो वी कैन कम्युनिकेट, बाबा 10-100-200 रुपए से प्राइस ज्यादा भी है तो बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज, then you can put it in your advertisement, put it in your circular, then you can have a press releases for that, you can put it in your product information brochure and all. So there are so many things you can do by knowing perceptions also, as like you can change your business strategies by knowing the satisfaction, you can change your promotion strategies by knowing the perception. Clear? तो परसेप्शन का स्टडी क्यों करना है, कैसे करना है, क्या काम में आएगा, एंड this will also help you to improve your services also, right? अगर किसी चीज का परसेप्शन कस्टमर्स का बहुत ही बेकार है, बहुत ही निगेटिव स्कोर आ रहा है परसेप्शन का, तो you will improve your that particular service. For example, हम बोलते हैं कि people do not treat us with respect when we go to the COVID vaccination centers, right? ये हमारा एक्सपीरियंस है. तो ये चीज अगर लोकल बॉडीज को पता चल जाती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पता चल जाती है, आपके कॉर्पोरेटर को पता चल जाता है, तो दैट कॉर्पोरेटर विल गो एंड टेल दिस पीपल टू वर्क अकॉर्डिंगली एंड दे विल चेंज देयर फंक्शन आल्सो, एंड बाय चेंजिंग दैट फंक्शन नाउ दे विल अगेन कम्युनिकेट टू द पीपल दैट वी हैव इम्प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग एंड नाउ यू कम एंड एक्सपीरियंस आवर प्रोडक्ट, राइट? So you can take a corrective actions also by knowing the perception, right? And perception कहाँ से डेवलप होता है?
the individual's perception is totally depend on his own knowledge, his information sources, and his social groups, his social connects. That is called subjective norm in some standard language. But वो क्या होता है, family pressure, groups, peer pressure among his society members, his social groups like family, friends, relatives, ये सब लोग हैं उसको perception change कर देते, isn't it? कितनी बार आपके घर में कोविड के वैक्सीन के बारे में डिस्कशन हुआ होगा, अरे मेरा मामा तो डॉक्टर है, वो बोलता है ऐसा मत करो, अरे मेरी चाची तो वो मेडिकल में है, शी इज केमिकल बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पर्सन, so she says नहीं नहीं नहीं, ये वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा है वैसा है, अच्छा नहीं है. So by that way our perceptions get changed, and that's the reason organization needs to go for perception studies. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Right? Am I reaching to you all perfectly? Yes, sir. Okay. So हमने क्या किया था? We wanted to know the perception. So we have decided what point, what questions. We had a research question that we are not aware about the perception of people regarding COVID-19 vaccines. So we started working on that. We have kept objectives that we want to understand their perception. We want to check the perception of people according to this particular thing. क्या उसका डेमोग्राफिक में कितना रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ रिस्पोंडेंट एंड हिज परसेप्शन, ये सब चीजें हमको चेक करनी थी, वो हमने अभी तक डिसाइड किया है. राइट, वी हैव कम अप विद दोस आउटकम्स. रिसर्च प्रॉब्लम हो गया हमारा, रिसर्च क्वेश्चंस हो गया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट हो गए, डिस्कस किए हमने, बट सेंटेंस फ्रेम नहीं किए. फिर भी मैं आपको बताता हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है. क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे? वी वांटेड टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन इन मार्केटिंग एलिमेंट, इन मार्केटिंग मिक्स. राइट, परसेप्शन ऑफ कस्टमर्स according to the elements of marketing mix. दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव, what is the relationship between customers demographic profile and their perception, right? And तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि what is the level of perception, whether it is, what is the level of consumer perception, whether it is positive or negative. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए. राइट, डिस्कस हमने बहुत बार किया है, फ्रेम नहीं किया होगा, कहीं नोट करके रख लो, फिर बाद में कभी पूछूंगा मैं आपको हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है करके. तो एक है, we wanted to study the relationship between demographic profile and perception, to study the level of perceptions, to study the most important factors which are affecting the perception. Right, ये हमारे objectives है. And to determine the important factors which change the perception. ये सब चीजें हमको स्टडी करनी है, so that we are discussing this particular thing. तो ये स्टडी करने के लिए हमने क्या किया? We have found out what are the variables affecting consumer perceptions. देखो, जब आपके पास टाइटल है, क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव्स है, तो यू नीड अ डेटा, एंड यू कैन नॉट कलेक्ट डेटा विदाउट हैविंग वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के लिए जो रिस्पॉन्स मिलेगा, वेरिएबल के जो आंसर्स है, उसको डेटा बोला जाता है. राइट, हम हमेशा बोलते हैं व्हाट इज, मेरे पास डेटा नहीं, मैं समर इंटर्नशिप कैसे करूं, मेरे पास डेटा नहीं, मैं एनालिसिस कैसे करूं, मेरे पास डेटा नहीं, मैं प्रोजेक्ट कैसे करूं. अरे तेरे पास डेटा तभी आएगा जब यू विल फाइनलाइज योर वेरिएबल्स. Right, let's suppose someone is in a finance research, finance specialization, and they want to go for research, and summer internship research करने के टाइम पे उनको लगेगा अरे मेरे पास तो डेटा ही नहीं, मैं कौन सा करूँ. To go for your summer internship in finance specialization, you have to identify what is your problem, what are the variables affecting that problem. Then you calculate variables from the balance sheets, from the public documents of that company, come up with the ratings of that particular variable for 5 years, then find out correlation between that variable and another something which you are looking for. So data collect करने के लिए आपके पास सबसे पहले variables चाहिए, whether it is quantitative data, whether it is qualitative data, and whether it is the data through survey. जो भी हो, आपको variables पता होने चाहिए. आपको अगर let's suppose someone working in a finance specialization, उसको data collect करना है, तो data कहाँ से लेगा? बैलेंस शीट से लेगा. बैलेंस शीट से क्या लेना है ये तो पता होना चाहिए. So you wanted to understand ratio analysis of particular company, let's suppose, right? तो आपने क्या किया? You wanted to identify the net profit ratio. तो net profit ratio के लिए क्या क्या डेटा लगने वाला है, उसके वेरिएबल्स आपको लिस्ट करने पड़ेंगे. राइट, आपको प्रॉफिट पता चाहिए, आपको उसका टैक्स कितना गया है वो होना चाहिए, लाइबिलिटीज कितनी है, उसका असेट्स कितना है, ये सब फिगर्स होनी चाहिए. टर्नओवर कितना है, रेशियो कितना, टर्नओवर रेशियो कितना है, उसका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, ये सब वेरिएबल्स हो गए. तो यू शुड नो द वेरिएबल्स बिफोर यू गो फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा. बिना डेटा, बिना वेरिएबल का आप डेटा ही कलेक्ट नहीं कर सकते हो. राइट, सो
For example, you will say that how we are going to understand the qualitative data by variables. अरे वेरिएबल्स भी है, डेटा क्वालिटेटिव है, बट एक चीज का आंसर चाहिए आपको, कोई तो कोई. फॉर एग्जांपल, यू आर टेकिंग ओपिनियन ऑफ रिस्पोंडेंट्स टुवर्ड्स द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. लेट्स सपोज सर्फ एक्सेल, आपने एफजीडी लिया, फोकस ग्रुप डिस्कशन लिया, राइट, एंड सर्फ एक्सेल के कस्टमर्स को पूछा एंड क्वालिटेटिव डेटा लेना है आपको, तो क्या करोगे? एक डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू लोगे, बट लंबा डिस्क्रिप्टिव आंसर लोगे उससे, बट आंसर के लिए क्वेश्चन तो पूछोगे ना, वो क्वेश्चन आपका वेरिएबल बन जाएगा, राइट. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द लाइक परफॉर्मेंस ऑफ सर्फ एक्सेल? परफॉर्मेंस क्या है उसका, क्लीनिंग कैपेसिटीज कैसा करता है, कितना क्लीन करता है, क्या होता है, ये सब चीजें तो वो डिटेल में बताएगा. तो परफॉर्मेंस ऑफ सर्फ एक्सेल इज योर वेरिएबल, उसके ऊपर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. समझ में आ रहा है? वेरिएबल्स चाहिए, बिना वेरिएबल का डेटा नहीं आएगा. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सो हमने क्या किया है अभी तक? वेरिएबल्स कलेक्ट किए हैं, राइट. हमको क्या चाहिए? डेटा चाहिए. डेटा कहाँ से आएगा? डेटा कहाँ से आएगा? भाग गए क्या सब लोग? नाश्ता करने गए क्या? No, sir. नहीं ना. ओके. सो डेटा कहाँ से आएगा? Sir, survey से. सर्वे करेंगे, सर्वे करना पड़ेगा हमारे. Sources से. For this particular program, for this particular research report, we have to do a survey because हमारा क्वेश्चनर है कंज्यूमर ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड. अगर कस्टमर ओरिएंटेड है तो यू हैव टू गो एंड टॉक टू द कस्टमर्स, राइट. एंड टू टॉक टू द कस्टमर्स, अगर हमारा फाइनेंस का होता तो हम बैलेंस शीट में चले जाते, राइट. नंबर्स चाहिए हमको, फिगर्स चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? वी विल गो टू द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट नहीं तो अगर हम कॉस्टिंग पे कर रहे हैं तो हम उस कंपनी का कॉस्ट शीट में जाएंगे, राइट. सो डेटा का सोर्स आपको पता करना चाहिए. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ योर डेटा? व्हेन यू थिंक ऑफ वेरिएबल्स, जब आप वेरिएबल के बारे में सोच रहे हो तभी डेटा सोर्सेस के बारे में सोचो. सोर्सेस क्या है? सोर्सेस मींस वेयर द एक्चुअल रीडिंग्स, वेयर द एक्चुअल स्कोर्स, वेयर द एक्चुअल नंबर्स आर अवेलेबल फॉर योर वेरिएबल. आपके वेरिएबल्स के आंसर्स, स्कोर्स, रीडिंग्स जहां पे अवेलेबल है, दैट इज योर डेटा सोर्स, राइट. For the finance person who is working in particular research related to, let's suppose, ratio analysis, उसके लिए कहाँ पे है डेटा? For him, data is there in the balance sheet, right? So data source is the balance sheet or company records. Another, for people who are working on the consumer surveys like us, consumer satisfaction and all, हमारे लिए data sources कौन है? For us, the data source is the consumer or the individual who is eligible to take COVID-19 vaccine. That is, can we go and talk to the person who is 8 to 10 years old or 5 to 6 years old? He is not eligible and he is not even, his opinion is granted by the legal provisions of our country, right? So we have to understand what are our data sources. So our data sources are all the people those who are eligible for COVID-19 vaccination. तो हमको चाहिए डेटा, हमने निकाले वेरिएबल्स. अभी हमको क्रिएट करना है सर्वे. सर्वे कैसे क्रिएट किया जाता है? जनरली इफ यू टॉक टू मी अबाउट सर्वेज आर कंडक्टेड. कैसे किया जाता है सर्वे? एक इंटरव्यू होता है, राइट. एक क्वेश्चनर होती है और दूसरा होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन. मैंने आपको बोला था डेटा कलेक्शन के मेथड क्या क्या है, सर्वे कैसे कैसे होते हैं. ऑब्जर्वेशन से भी सर्वे होता है, यू नो. You can just go and observe the things and find out whether people are perceiving positive about this thing or not. Just go and visit hospitals, COVID-19 centers and all, and observe what is the opinion of people about COVID-19 vaccination. No need to go and talk to them. वो अपने आप डिस्कस करेंगे, वो अपने आप सोचेंगे उस चीज के बारे में, and you just note it down. ऑब्जर्वेशन से भी डेटा कलेक्ट हो सकता है. सो डेटा कलेक्ट करने के मेथड से ऑब्जर्वेशन, सर्वे, फोकस ग्रुप डिस्कशन. तो हमने सर्वे सिलेक्ट किया, राइट. बिकॉज फॉर अस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर्स ऑफ आवर क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्वेशन ओनली. हमारे लिए ऑब्जर्वेशन से नहीं मिलेगा आंसर. तो हमने क्या सोचा? वी विल गो एंड डिस्कस विद देम विद द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर. तो सर्वे करने के लिए भी क्वेश्चनर्स का टाइप है, राइट. हमने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रक्चर्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चनर. बिकॉज वो अगर
एक एक पैराग्राफ आंसर लिख के देंगे तो हमारे लिए एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। और सैंपल साइज इज वेरी बिग, वी आर गोइंग टू टेक अ बिग पॉपुलेशन फॉर दिस रिसर्च, बिकॉज दो चार लोगों को पता करके हम पूरे सोसाइटी का परसेप्शन जान नहीं सकते, right? So we have decided to go with the big population, and we will have a big survey for that. Number of people taking part in the survey would be a huge number, right? तो उसके बाद हमने सैम्पलिंग मेथड डिजाइन डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें याद रखो। यहाँ पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी से ही जाएंगे, मैं रीजन बताऊंगा आपको उसका बाद में, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक टू अ वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन, वी आर गोइंग टू टॉक टू अ वेरी इनफाइनाइट एंड अनआइडेंटिकल पॉपुलेशन, राइट? कौन कहीं से रिस्पॉन्स करेगा हमको पता नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑल विथ रिस्पेक्ट टू हाउ टू कलेक्ट डेटा, सर्वे कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमको क्वेश्चनर क्रिएट करनी है, हमने लिस्ट ऑफ वेरिएबल बनाया। जनरली क्या होता है, उसका हार्ड कॉपीज हम लेते हैं। जनरल सर्वे कैसे होते हैं, उसके हार्ड कॉपीज हम लेते हैं क्वेश्चनर के, जो मैंने आपको एक और क्वेश्चनर दिखाई थी अपैरल इंडस्ट्री के बारे में, याद है आप लोगों को? Sir, which industry? अपैरल्स के बारे में जो क्वेश्चनर मैंने आपको दिखाया था, वर्ड डॉक्यूमेंट लास्ट सेशन में, राइट? वही डॉक्यूमेंट होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, उसका प्रिंट लेते हैं एंड वो हार्ड कॉपी ले जाके आप इंडिविजुअल को दे दो, वो भर देगा, घर आके आप रिस्पॉन्सेस नोट करो एंड एनालिसिस करो एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन अ ट्रेडिशनल मेथड, राइट? बट अभी हार्ड कॉपी लेके कहाँ घूमोगे आप सब लोग? इन दिस पर्टिकुलर डिजिटल वर्ल्ड वी नीड नॉट टू यूज हार्ड कॉपी, राइट? किसी के घर पे जाने का भी जरूरत नहीं है, Yes, sir. तो पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं। व्हाट डू वी डू इज दैट वी क्रिएट अ गूगल फॉर सर्विस फॉर दैट। सो सर्विस हैज बिकम डिजिटल, जो फिजिकल में होता था वो अब डिजिटल में हो रहा है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव सीन हाउ टू क्रिएट गूगल सर्विस, दैट तो फॉर एनी पर्पस, किसी भी चीज के लिए अगर आपने गूगल सर्वे किया हो तो। No, sir, we don't know how to create. Yeah. No, sir. Yeah, Sir, we Google- have to learn. Okay. So, fine. I will tell you how to create a Google form. But क्वेश्चनर जो है हमारा एक्सेल शीट में, अभी वेरिएबल्स है, सब लोग आपने देखा हुआ है, हमारे पास वेरिएबल जो है वो पूरा एक्सेल शीट में है। उसका आपको मैंने डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे काम करने के लिए बोला था, किया क्या? Is it done? No, sir. I have asked you to read the. No, sir. क्यों नहीं किया? अभी कैसे करेंगे? अभी हम सर्विस कैसे करेंगे बताओ? ग्रुप में नहीं था सर, मैंने बहुत मैसेज किया कि मीटिंग करनी है, किस समय करें, तो किसी रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर छोड़ दिया मैंने। ओके, वेरी गुड। इन चीजों पे काम करना था, ठीक है। मैं भी जितना हो सकता है हम करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट होते जा रही सिचुएशन, इजंट इट? ओके, फाइन। तो वी हैव ऑल दोस वेरिएबल्स विद अस, ये चीजें हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है, बिकॉज परसेप्शन इन चीजों पे चेंज होने वाला है, राइट? अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन परसेप्शन विल चेंज, अकॉर्डिंग टू द इनकम आल्सो परसेप्शन विल चेंज, एज के हिसाब से परसेप्शन चेंज होगा, राइट? सो हमको ये एक रिलेशन देखनी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड परसेप्शन। तो हम कम्युनिकेशन भी चेंज कर सकते हैं। हमको अगर एज में पता चला, इनकम ग्रुप में परसेप्शन का लेवल पता चला, तो वी कैन चेंज आवर कम्युनिकेशन टारगेटिंग टू दोज ऑडियंसेस। रूरल अर्बन के बारे में पता चला तो हम चेंज कर सकते हैं इसको, राइट? ये आपने डिलीट किया था, क्यों सेव नहीं हुआ क्या? कौन सा भेजा आपने मुझे? Sir, total 11 questions था. अब ये आपको डिलीट करने को Sir, बोला I think it changed नहीं हुआ। Yes, sir. Yes, sir. This Yes, one is sir. not new. This one is old one. So, okay, sir. I will send you new one. Sir, wait. So meanwhile you guys just understand, we have to go to this particular menu option in Google, right? Screen दिख रहा है ना सबको? You can just log in your Gmail, आपका मेल लॉग इन करो लैपटॉप पे and follow the steps. Meanwhile you will understand कैसे करते हैं। This is option menu, just go to the drive. आपके SIP में आप सबको ये चीजें करनी है, डोंट टेक इट लाइटली। करोगे तो पता चलेगा, नहीं करोगे तो यू विल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 10% ऐसा है, 10% वैसा है, ये सब चीजें करके आप भूल जाओगे उसको,
राइट सर, मेरे मेरे पॉपुलेशन में भी 10% लोगों ने बोला कि दे आर having this kind of perception, they are positive about perception, they are negative about perception. खत्म आपका रिसर्च. You will never get to know that उसके एज में और परसेप्शन में क्या रिलेशन है, उसके इनकम में और परसेप्शन में क्या रिलेशन है, टोटल परसेप्शन लेवल कितना है, राइट? ये सब चीजें आप भूल जाओगे. You would not be able to make out those things by doing research if you do not concentrate on this particular thing. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चनर पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है, रिसर्च करना है. आई वॉज थिंकिंग कि आप लोगों ने कर लिया होगा ये चीज एक्सेल शीट का, बट अभी उसमें 10-15 मिनट आधा घंटा चला जाएगा अपना. टाइम टेबल क्यों भेजा है? सर वो सर टाइम टेबल नहीं है सर, फाइल का नाम ही वही है जो आपने भेजा था ना, वो फाइल का नाम ही वही है. चलो, तो ये सब चीजें हैं. वी हैव ऑल द वेरिएबल्स नाउ. किसी को कुछ डाउट है क्या? वेरिएबल क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आए, हमने कहाँ से निकाली इन सब चीजों को? ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, इट इज रिसर्चर्स अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी बेसिक चीजें उस पर अफेक्ट कर सकती है, और ये सब चीजें हमने कहाँ से निकाली? ऑल दोस थिंग्स वी हैव गॉन थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, राइट? लिटरेचर सर्वे किया हमने, लिटरेचर पढ़ा, पीछे किसने क्या काम किया था ये चीज के रिलेटेड. लिटरेचर रिव्यू मैं आपको बताऊंगा. अभी मैं आपको फिलहाल के लिए याद देना कवलजीत या सीआर मुझे, जब लिटरेचर रिव्यू की बात करेंगे, व्हाट आर द मेथड्स, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन लिटरेचर एंड ऑल, राइट? बट ये जो वेरिएबल्स थे, as we were discussing while we were talking about hypothesis formation, या hypothesis कहाँ से आता है? I was telling you that hypothesis is a educated guess with some evidences, right? आपका कोई भी रिसर्च, हमारा hypothesis यहाँ पे क्या होगा? People are positively perceiving और people are negatively perceiving, ये दोनों में से एक हो सकता है, राइट? तो हम क्या बोलते हैं? People are positive about, that is our hypothesis. एक assumption क्या हो सकता है? What is educated guess? People are positive about COVID-19 vaccine. ये हमारा hypothesis हो गया यहाँ पे. I was telling to you all that when we talk about hypothesis, this should be an educated guess with some evidence, and we have got those evidences through the literature review, literature survey, right? Literature review करके हमको evidences मिले थे, based on which we did this particular thing. तो यहाँ पे जाना है आपको. Are you all ready in your laptops? Yes sir. Right? Yes, sir. मैं अभी दिखाऊंगा how to create this particular survey, and I think I will ask you all to prepare the survey. आप कोई तो भी स्क्रीन शेयर करके करवाओ, एंड मुझे लगता है कवलजीत को ही करना पड़ेगा. शी इज ओनली टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग. तो ये कहाँ से आया है, फिर से एक बार बताता हूँ. वी हैव गॉन टू दिस पर्टिकुलर मेन्यू, देन ड्राइव. यूट्यूब करोगे तो 2 मिनट में मिल जाएगा आपको हाउ टू क्रिएट सर्वे, बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा यूट्यूब में भी, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बहुत कम होती है. Then you will go to new, right? मेरे ड्राइव में इतने सारे सर्वेज है. लुक एट दिस, ये सब ब्लू में दिख रहे हैं ना, ब्लू में ये सब सर्वे है. एंड ये जो Yes, sir. ये जो पीडीएफ है ना, दिस ऑल आर द रिसर्च पेपर्स आई हैव पब्लिश्ड, राइट? ये सब रिसर्च पेपर है जितने पब्लिश हुए हैं, एंड इतने सारे सर्वेज हमने ऑलरेडी करके रखे हैं. तो लेट मी टेल यू दैट न्यू में गूगल फॉर्म्स, न्यू में जाना है, देन गूगल फॉर्म. यहाँ पे आ गया गूगल फॉर्म, राइट? तो यहाँ पे हम देंगे उसको टाइटल. टाइटल क्या है? कंज्यूमर्स परसेप्शन टुवर्ड्स COVID-19 vaccine, right? Then we have gone to, अभी हमको क्या चाहिए? यहाँ पे हमने ये दे दिया, क्या बोलते हैं इसको, इसका हमने टाइटल दे दिया. देन यहाँ पे यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन में यू कैन जस्ट ऐड डियर रिस्पोंडेंट, ऐसा कुछ. डियर रिस्पोंडेंट,
kindly spare your few minutes to fill this survey. This information will be used for academic purpose. अगर आप इंश्योर नहीं करते हो लोगों को तो दिस इज काइंड ऑफ ये क्या है, दिस इज काइंड ऑफ रिसर्च एथिक्स, राइट? यू आर इंश्योरिंग देम, this your information will be used for only academic purpose and will be kept confidential, right? And will be kept confidential. किसी को शेयर नहीं करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, सर्वे करोगे। रिसर्च एथिक्स का आता है वो बताता हूँ। सर्वे करोगे, किसी को पूछोगे व्हाट इज योर एज, इनकम, ये वो, और सब इंफॉर्मेशन शेयर कर दोगे मैट्रिमोनी वाले को, अपने रिलेटिव्स में, राइट? हम पूछेंगे व्हाट इज योर कास्ट, व्हाट इज योर इनकम, ये वो, और दे दिया इंफॉर्मेशन किसी को, तो they will, and information in the sense like nowadays email IDs and contact numbers, you gave it to you someone who is running this, who is running particular agency for any cloth shop and something. I'm not talking about this particular, but survey agar consumers behavior towards particular thing, consumer behavior towards रेडीमेड गारमेंट्स एंड ऑल, अगर वो सर्वे करते हैं हम और किसी शॉपकीपर को शेयर करते हैं तो वो हमेशा कॉल करके उनको परेशान करेगा, राइट? So you are ensuring your respondent here that we are requesting to take a part in survey and we are saying that this will be used for academic purpose. अगर आप कंपनी के लिए कर रहे हो तो you have to ensure that this will be used for commercial purpose in that company and we will never share your information with anyone, and we will, like, you are not going to harass them for anything. That is what is the outcome in the research ethics, right? Share नहीं करोगे, harass नहीं करोगे, misuse नहीं करोगे, right? This will not be misused. अब यहाँ पे क्वेश्चंस लेने हैं आपको, यू कैन कीप एडिंग क्वेश्चंस वन बाय वन, ये सब बटन्स हैं, राइट? आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेट सपोज मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर नेम, राइट? यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने इधर से कॉपी किया इसलिए हमको एक्सेल रेडी रखनी चाहिए। नेम इधर डाल दिया, नेम, आई मीन लेट सपोज लाइक व्हाट इज योर नेम, वो वेरिएबल लिखा था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है आपको, राइट? टाइप ऑफ, अब ठीक से देखो, यहाँ पे आपने लिखा व्हाट इज योर नेम, आपको आंसर कैसा चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर द आंसर। लाइक अगर नाम चाहिए तो नंबर में तो नहीं हो सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं हो सकता है, राइट? दिस कैन नॉट बी अ कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा आल्सो। नेम ओनली कैन बी अ नॉमिनल डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, राइट? ये सिर्फ नॉमिनल डेटा हो सकता है, क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है। नेम में वो कोई नंबर वगैरह नहीं दे सकता, राइट? तो ही हैज टू बी allowed, the respondent should be allowed to give this particular answer in theoretical। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट आंसर चाहिए हमको। यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिख रहे हैं पूरे के पूरे, कौन से फॉर्म में चाहिए आपको, डेट, टाइम, ये सब कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन है, राइट? कंटिन्यूअस डेटा। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑर्डिनल एंड रेशियो स्केल। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा दिया हुआ है, ये जो है ना, ये वेरिएबल हमने लिख दिया। इस ड्रॉप डाउन में गूगल ने क्या किया है, पूरे के पूरे सर्वे करने के टाइम पे आपको जितने स्केल यूज करने वो स्केल यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट? व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर एक्सपेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ आंसर फॉर दिस वेरिएबल, ये सब यहाँ दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, नेम कौन सा आएगा, इसमें से नेम को कौन सा आएगा, इसके आगे वाले में सब आपको पूछने वाला हूँ। सर शॉर्ट आंसर, नेम के लिए शॉर्ट आंसर आएगा। ओके, हमने सिलेक्ट किया, हमको कंपल्सरीली चाहिए नेम, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड करना, राइट? अगर आपको कंपल्सरी नेम चाहिए तो यहाँ रिक्वायर्ड करो, अगर नेम नहीं भरेगा तो फॉर्म नहीं भर पाएगा, राइट? चलो यहाँ पे हमने कंपल्सरी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल, मोबाइल नंबर एंड प्लेस, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे हम ऐड करेंगे, नया क्वेश्चन आया, राइट? यहाँ पे नया क्वेश्चन आया, फिर यहाँ पे जाओ, ईमेल, राइट? कंपल्सरी चाहिए, ओके। शॉर्ट आंसर अपने आप आएगा क्योंकि ईमेल शॉर्ट आंसर में जाता है, राइट? गूगल लेता है वो सब स्मार्टली, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन मोबाइल नंबर, राइट? यहाँ पे सर ये लैपटॉप से नहीं होगा क्या, क्योंकि मोबाइल से कर रहे तो उसमें नहीं है।
आई डोंट नो मोबाइल पे होता है कि नहीं होता है, बट मोबाइल पे मैंने कभी किया नहीं, तो मुझे लगता है नहीं होता होगा मोबाइल पे। सो जैसे आपने बताया फर्स्ट स्टेप ड्राइव में जाना है, ड्राइव में मैं गई, उसके बाद न्यू है, तो न्यू में जाने के बाद सर माई ड्राइव है, कंप्यूटर है, बहुत सारा न्यू ऑप्शन पे है, तो क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे Yes, sir. Steps सर लिखने फाइल, के तो सर हाँ सर गूगल फॉर्म्स है, गूगल फॉर्म, गूगल स्लाइड, गूगल शीट। में बहुत सारा है, मोर पे क्लिक करोगे तो इधर बहुत सारा कुछ कुछ आएगा। ओके, तो सर गूगल फॉर्म में जाना है ना सर? हाँ, गूगल फॉर्म में ही जाना है ना हमको, सर्वे तो गूगल फॉर्म से होगा। मोर पे Yes, क्लिक sir, करोगे मिल तो ये गया। सब चीजें आएगी, गूगल ड्राइंग, मैप, साइट, ये सब चीजें। ओके, जस्ट यस सर, टेलिंग गॉट यू इट। दैट हाउ इट वर्क्स। यस सर। फॉर्म पे क्लिक करोगे तो अपने आप ओपन हो जाएगा नया फॉर्म, और वो ऑटो सेव में रहता है, हर चीज ऑटो सेव हो जाएगी फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। राइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मोबाइल नंबर किया। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, मोबाइल नंबर में भी शॉर्ट आंसर रख दिया हमने, बट क्या हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट आंसर में वो एबीसीडी भी लिख सकता है, राइट। यस सर। एबीसीडी लिखेगा तो मोबाइल उसको एक्सेप्ट भी करेगा, गूगल उसको एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि उसने शॉर्ट आंसर दिया है। गूगल तो न्यूमेरिकल में ऑप्शन में डालना होगा, न्यूमेरिकल। तो हम इसको नंबर या नंबर फॉर्मेट में कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। वी लीव इट टू लिबर्टी ऑफ योर रिस्पोंडेंट, राइट। ओनली नंबर कंपलसरी कर सकते हैं हम इसको सेटिंग में जाके, राइट। वो जरूरत नहीं है, अभी उसको छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कंपलसरी किया हमने, ऐड किया, नया क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ऐड करना है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। Yes, राइट, sir. देन हम जाएंगे प्लेस, उसका प्लेस जो है, राइट। तो प्लेस में हमको उसको क्या करना है, दो ऑप्शन देने, रूरल या अर्बन। हमारा ऑप्शन क्या है प्लेस में, यहाँ पे गलत हो गया, हमको यहाँ पे ऑप्शन देने चाहिए उसको, राइट। हम सोच रहे थे ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द, वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, क्या बोलते हैं हम, रूरल और अर्बन। प्रोफाइल में, यस, उसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हमको उसका ये भी देखना है कि रूरल अर्बन में कितना डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे रूरल एंड अर्बन, राइट। तो ये ऑप्शन देने हैं हमको। अब ये क्या है, कौन सा टाइप का डेटा है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव? सर क्वालिटेटिव। Sir, qualitative. क्वालिटेटिव डेटा, परफेक्ट। क्वालिटेटिव में क्या है, नॉमिनल है, ग्रुप वाइज जा रहे हैं, या फिर हम लोग ये इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या हम? ये ग्रुपिंग है क्या, क्या है, नॉमिनल डेटा है? नो सर, ग्रुपिंग क्या है? नहीं है सर। नॉमिनल में Yes, हमको, सॉरी, क्वालिटेटिव में हमको क्या क्या ऑप्शन थे? क्वालिटेटिव डेटा के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे? एक नॉमिनल, दूसरा Sir, स्केल, nominal और एक ordinal था. दूसरा ऑर्डिनल। हाँ, ऑर्डिनल एंड स्केल, राइट। ऑर्डिनल को हम स्केल डेटा भी बोलते हैं। एक नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। इसको हम ऑर्डर में लगा सकते हैं क्या, प्लेस को? प्लेस को हम ऑर्डर में लगा सकते हैं क्या? ऑर्डर मतलब क्या, हाईली सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर? नो सर। हम अगर पूछते हैं विच प्लेस यू बिलोंग्स टू, दिस डेटा कैन नॉट बी ऑर्डिनल, उसके प्लेस को हम सीक्वेंस में, नंबर में अरेंज नहीं कर सकते, राइट। उसके जो भी आंसर्स आएंगे, सभी ने मिलके आंसर भी दिया, तो फिर भी हम उसको, सब कोई बोलेगा मैं रूरल अर्बन हूँ, मैं दिल्ली में, तमिलनाडु, साउथ ईस्ट वेस्ट से हूँ, उसको हम ऑर्डर में नहीं रख सकते। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नॉमिनल डेटा फॉर अस, राइट। यहाँ पे डिटेल डिस्कशन समझो, बहुत सारी चीजें इसी फॉर्म में क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये कौन सा डेटा है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, और ये जाएगा नॉमिनल स्केल में, राइट। तो हम यहाँ प्लेस में जाएंगे, फिर से हम जाते हैं गूगल फॉर्म में, and we will put here what is your place you belongs to, right। पूरा लिखना चाहिए, क्योंकि रिस्पोंडेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इन द क्वेश्चंस इज आल्सो अ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, राइट। उसको पता होना चाहिए व्हाट यू आर प्रिसाइजली आस्किंग। अगर आपका क्वेश्चन, हमने क्या बोला था, स्ट्रक्चर, क्लोज एंडेड, प्रिसाइज क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चंस प्रिसाइज नहीं रखेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि आंसर कैसा करना है। ही कैन गिव यू द false answer or not exact answer what you expect। आंसर तो मिलेगा, राइट। आपने लिखा प्लेस और यहाँ खाली छोड़ दिया और यहाँ ओपन एंडेड रख दिया, तो क्या लिखेगा? कोई लिखेगा पटना, कोई लिखेगा बिहार, कोई लिखेगा गुजरात, कोई लिखेगा महाराष्ट्र एंड समथिंग। So you cannot keep it open, so you have two options to put it into a nominal scale, right। nominal scale में रखो and then go to this particular thing। अब nominal में रखना है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक बॉक्स चाहिए, दोनों में से एक ही सिलेक्ट करेगा ना, ऐसा हो सकता है क्या, someone is for both the places? नो सर। ऐसा हो सकता है क्या? तो हमको क्या चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए जिसमें वो Optional। एक आंसर सिलेक्ट कर सके, राइट। तो यहाँ पे जाना है,
अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स करेंगे तो वो दोनों को भी टिक कर सकता है, राइट। तो हमको चाहिए मल्टीपल चॉइस, Yes, sir. हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, रूरल। Rural, ऑप्शन 2 में क्या जाएगा, urban. बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, राइट। और इसको हम कंपलसरी कर देंगे, राइट। अब क्या हो गया, ये दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकता है। मैं आपको व्यू में दिखाता हूँ, ये व्यू में जाइए, यहाँ पे व्यू है, राइट, ये आंख वाला, ये व्यू में, यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, वो क्वेश्चन आपका ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये इसको क्लिक करेगा तो ये निकल जाएगा, दोनों को चेक कर नहीं सकता है। Yes, sir. तो हमने इसको ग्रुप में डाल दिया, पीपल दोज हु बिलोंग्स टू रूरल ग्रुप विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन, पीपल हु बिलोंग्स टू अर्बन ग्रुप विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन। तो क्वालिटेटिव डेटा इन ग्रुप्स, qualitative data in groups is a nominal scale, right? फिर से यहाँ पे अब क्या है, we want to have next question, नया क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is your gender? Similarly again, right? Now this will be a qualitative data and yeah, Google has suggested you already options here, right? Now Google started working as per your requirements. He has understood. Yes, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टेड वर्किंग, राइट। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेल, सेकंड ऑप्शन क्या है, फीमेल। एंड इट सजेस्टेड लाइक क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वी कैन ऐड ऑल, देन वी कैन ऐड दिस, सिलेक्ट 111, देन इट विल कीप एडिंग। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेल, वी विल गो एंड ऐड हियर मेल, देन सेकंड में फीमेल, राइट, देन क्लोज, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड यू आर। How old you are में मतलब this is what now, this can be a open ended, yeah, this is quantitative, right? This is quantitative if we keep it open. समझने का कोशिश करो, understand the receipt of responses, right? It is quantitative if we keep it open and if we take the numbers, अगर कोई 23, 24, 25 डाल देता है तो तब ये क्वांटिटेटिव है, राइट। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसके ग्रुप्स क्रिएट किए, एज ग्रुप्स क्रिएट किया है, राइट। Yes, sir. तो अगर ये एज ग्रुप में जाता है तो ये क्वांटिटेटिव नहीं रहता है, इट बिकम्स नॉमिनल ग्रुपिंग्स लाइक दिस। मेल में ग्रुप है, फीमेल में ग्रुप है, रूरल अर्बन में ग्रुप्स है, वैसे ये ग्रुप है ना 15 से 20 का, 20 से 25 का, Yes, sir. Yes, right? sir. So it is also a nominal data, it is also nominal qualitative data. समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. इजी है और इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मजा आएगा जब आप एसआईपी करोगे और खुद दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। 2-4 दिन Yes, sir. Google form अच्छा लग रहा है सर। आपने 2-4 दिन Yes, sir. इन्वेस्ट किया ना इसमें, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, हमको फिर से क्या चाहिए, एक ऑप्शन चाहिए, कैन आ रिस्पोंडेंट गिव अ रिस्पांस इन बोथ द ग्रुप्स। No, No, sir. sir. तो वी वांट मल्टीपल चॉइस ऑप्शन क्वेश्चन, राइट। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं हम एग्जाम में। तो अभी यहाँ पे आपने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये वेरिएबल्स आपको काम करने को बोला था मैंने। अपने टारगेट ऑडियंस कौन है, Sir, 18 to 30, 18 plus. 18 प्लस है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, 18 to 30 इयर्स, राइट। पहला ग्रुप ये लेते हैं हम, 18 to गवर्नमेंट ने क्या क्या ग्रुप दिए थे वो बताओ। 18 से 45 था, राइट। Yes, sir. 18 to 45 और second है 45 plus. देन 46 to, Sir, 46 तो जब तक बंदा जिंदा नहीं है। 46 to था ना पहले कुछ 60, राइट, एंड देन 60 अबव, राइट। Yes, sir. तो ये ग्रुप हो गए 60 अबव 60 इयर्स ये। एंड फ्रॉम वेयर वी हैव फॉर्म दिस ग्रुप्स अगेन, हमने रेफरेंस लिया कहीं से न कहीं से। रेफरेंस लिया मतलब हमने इंफॉर्मेशन यूज की, किसी ने दिया हुआ। तो किसने दिया था हमको इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ने दिया था, राइट। Yes, sir. सो वी हैव यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन। हमने अपना दिमाग लगाया है कि यहाँ पे, No, sir. नॉट एट ऑल। हमने अपना रीजनिंग लगाया, हम उसको 10 से 20 रख सकते थे, बट वो गलत हो जाता है। फिर हमने मोस्ट एप्रोप्रिएट ढूंढने के लिए लिटरेचर का रेफरेंस लिया। लिटरेचर इज अबाउट गाइडलाइंस गिवन बाय गवर्नमेंट, न्यूज सोर्सेस एंड ऑल, राइट, सर्कुलर्स एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाय हेल्थ मिनिस्ट्री।
तो ये हमने यहाँ से उठाया। अब एक चीज है, यहाँ पे दो चीजें याद रखो। व्हेन यू आर फॉर्मिंग ग्रुप्स फॉर नंबर्स, जब आप नंबर को ग्रुप में क्वांटिटेटिव डेटा की ग्रुपिंग्स कर रहे हो, तब आपको एक याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा है 18 to 45, राइट? कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है इसकी, राइट? इट शुड बी अ कंटिन्यूअस स्केल। यहाँ पे हमने लिखा 45 to 60, तो क्या होगा? 45, जिसका एज 45 वो कहाँ आंसर करेगा बताओ? सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 45 to 60 और यहाँ पे लिखा 60 अबो, राइट? इस मेरा एज 45 है, तो मैं यहाँ आंसर करूँ या आंसर करूँ? सर ऊपर वाला। मैं यहाँ भी कर सकता हूँ क्योंकि आपने यहाँ 45 बोला है, राइट? यस सर। So you have to maintain the continuity of your quantitative nominal scale data. Continuity maintain होनी चाहिए। बट अगर 45 है तो सेकंड वाले में आएगा ना सर? बट मैं यहाँ पे भी रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। यू आर सेइंग दैट 18 to 45 है, आपने आंसर दिया है ना। बट अगर मैं यहाँ 46 कर देता हूँ, देन यस सर। 46 वाले को भी क्लियर है, 45 वाले को भी क्लियर है। और एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर इनकम? व्हाट इज योर इनकम, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ये गलत हो गया है, ये एक्चुअली गलत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे। मेरा इनकम है 5,05,000, इसको तो ऐड सेकंड ऑप्शन में आएगा 5,05,000। आई एम सेइंग दिस इज 5.01, मतलब 5,01,000 होगा। ये कितना होगा? 5,01,000। और मेरा इनकम कितना है? 5,05,000। तो कहाँ रखूंगा मैं? सर ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, so this is discontinued quantitative scale, this is interval scale, right? ये कंटिन्यूटी में नहीं है, इसमें इंटरवल्स हैं। ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, तो ये इंटरवल स्केल नहीं है, कंटिन्यूअस स्केल नहीं है ये, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस स्केल को ठीक करेंगे। मेरा इनकम अप टू 5 लाख है। मतलब आप सोचो कि आप जब क्वेश्चनर बना रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों में सोचना चाहिए, वेरिएबल्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो एक ये है 5 लाख, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 5 लाख के ऊपर, राइट? 5 लाख के ऊपर, अब वो 5 लाख टू 10 लाख। 5 लाख के ऊपर कितना भी हो, फिर 5 लाख एक पैसा भी हो तो भी वो 5 लाख के ऊपर जाएगा, यस सर। राइट? देन फॉर मी टू अंडरस्टैंड द ग्रुपिंग्स ऑफ माय आंसर्स, अब मुझे आंसर जो मिलेंगे वो भी क्लियर मिलेंगे, राइट? सो 5 लाख अबव 5 लाख टू 10 लाख, राइट? अब जो 10 लाख वाला है वो यहाँ तक देगा, 10 लाख के ऊपर जो है वो यहाँ देगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अबव 10 लाख, राइट? यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे अबव 15 लाख, राइट? एंड देन अबव 20 लाख, राइट? तो अबव 20 लाख मतलब अंबानी भी है तो वो अबव 20 लाख में आएगा। एज वी आर डूइंग सर्वे फॉर कॉमन पीपल, दोज हु आर लाइक अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, उसके लिए हमको इतना इनकम क्लास काफी है, राइट? जिस अगर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सोसाइटी में करोड़पति मिल भी गए तो वो इस ग्रुप में आ जाएंगे, राइट? तो हमको ज्यादा डिटेल आप बोलोगे सर हमने 5,000 वालों को फिर कैसे छोड़ दिया? वी कैन नॉट क्लासिफाई ऑल द नॉमिनल डेटा इन ऑल द ग्रुप्स, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 25 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 100 करोड़। सो इट इज कंटिन्यूअस ऑर्डिनल स्केल, ये कंटिन्यूअस ऑर्डर से एक के ऊपर एक रख सकते हैं हम इसको, राइट? बस ये डेटा को क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग ना हो, राइट? दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ रिस्क वेरिएबल। ये सब वेरिएबल्स है, राइट? ये वेरिएबल है आपका इनकम, मैरिटल स्टेटस इज अ वेरिएबल, दिस ऑक्यूपेशन इज अ वेरिएबल। तो यस में जब आप आंसर ले रहे हो रिस्पॉन्सेस की कि वो ओवरलैप ना हो, इतना याद रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, देन व्हाट, कोई डाउट इसमें? एनी क्वेश्चन? नो सर। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एज, ये भी क्लियर है? यस सर। क्लियर है। देन इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द पीपल विल से दैट सर वी विल टेक डिवोर्सी, वी विल टेक विडोड एंड ऑल, राइट? व्हाट आई अंडरस्टैंड, टू मेक योर रिसर्च आ सकते हैं ना, इसमें ऑप्शंस आ सकते हैं ना मैरिज स्टेटस में, राइट?
ये सर 4 ऑप्शंस हो सकते हैं सर। 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, एंगेज्ड हो सकता है। एंगेज ही हुआ है, सिर्फ मैरिज किया ही नहीं है, राइट? दिस ऑल कैन बी ऑप्शंस ओनली। हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस यस सर। सर हो सकता है। But to make it more simple, right? In India, legally, if you are living relationship with someone, that is considered as a marriage, right? Yes or no? Yes. I don't Yes. know sir. Yes or no? Yes. So it may be yes. And what about widowed and divorcees? अब As, पता नहीं as सर। far इसके लिए as अलग से ऑप्शन रहेगा। as I know about the living relationships in India, which is never legally considered as a marriage, right? उसका legal existence ही नहीं है कुछ इंडिया में। हाँ, that is dependent on the age of people, those who are living together. वो उनका they can live, it is allowed as a freedom of expression, freedom of living style and everything. So हमारे इसमें freedom को जो define किया है उसमें allow किया हुआ है, but legal कोई provision नहीं है, right? So that is not acceptable, तो हम वो option में डालेंगे ही नहीं। जो चीज legal में आती है नहीं option में क्यों जाएगी, right? दूसरा चीज ऐसा है, when we talk about widowed and divorcee people, right? वो widowed भी है तो married तो है ना, right? Yes sir. और वो डिवोर्सी है तो भी तो मैरिड है। यस सर। तो जब मैं खुद रिसर्च करता हूँ तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से मैं ये दो ही ऑप्शन देता हूँ, राइट? इफ यू रियली वांट टू टेक अ वेरी प्रिसाइज डेटा फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट्स एंड टॉपिक इज अकॉर्डिंग टू सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप उस टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहे हो तो आपको प्रिसाइज ऑप्शंस में जाना चाहिए, बट आपको उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आपके रिस्पोंडेंट्स को भी कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, राइट? तो वो जेंडर जो मैरिड का जो ये जो मैरिड अनमैरिड इशू है, इसको आप अगर वो टॉपिक वैसा है, फॉर एग्जांपल यू आर डिस्कसिंग अबाउट द पेरेंटिंग, राइट? your opinion about parenting of your kids and your research is somewhat related to that kind, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीजें ज्यादा मैटर करेगी, सिंगल मदर, लिव इन रिलेशनशिप, पेरेंट्स, विडो, डिवोर्सी एंड ऑल, तो उस टाइम आप प्रिसाइज ऑप्शन दे सकते हो, isn't it? yes no? यस सर। राइट? Yes sir. एंड अगर आप कंज्यूमर परसेप्शन का सर्वे कर रहे हो एंड अगर आप ऑटोमोबाइल्स के बारे में उसको ओपिनियन देख रहे हो, तो क्या करना है आपको इतना डिटेल में जाके, राइट? Yes sir. तो कोविड-19 के बारे में क्या फर्क पड़ता है हमको, वेदर इट इज विडोड और हमको ये दो कैटेगरी चाहिए, तो हमने सिंपल में दो रख दिया, राइट? क्लियर टू एवरीवन? हाउ डू वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सेस? क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि विच काइंड ऑफ आंसर्स वी आर गोइंग टू गेट, राइट? आंसर्स पे ही सब कुछ मैटर करने वाला है, समझ गए आपको? Yes sir. So, and the last option is about what is your occupation. तो क्या रख सकते हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम, फुल टाइम? सो इसको ज्यादा क्लासिफाई करने का सर जरूरत, पार्ट टाइम फुल टाइम से इग्नोर करते हैं। हाँ, तो इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट? तो ये क्या आएगा, वो पार्ट टाइम फुल टाइम क्यों किया था? बिकॉज दैट स्टडी वाज रिलेटेड टू यूथ, राइट? दैट स्टडी वाज रिलेटेड टू ओनली यूथ, so the questions were targeted to a people within certain age group 20 से 35 तक, और उसमें लोग पढ़ाई भी करते हैं, so some of them would be part time working, some of them would be full time working, so यस सर। this depending on the kind of respondents you are discussing, you have to select the options for your research, right? So student, employed, self employed, और क्या हो सकता है? बस एम्प्लॉयड मतलब सब कुछ आ गया, प्राइवेट एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, सैलरी, नॉन सैलरी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, सब आ गए, राइट? एक सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब उसमें सब कुछ आ गया, बिजनेसमैन, एक और हो सकता है प्रोफेशनल, राइट? कौन कौन आता है प्रोफेशनल में? सर लॉयर, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सीएस and consultants and everyone, right? These are the options you may have. Then what is here? Current level of education, ये में इसमें क्या आएगा? As we are talking to a very, अरे यार फिर से वही आ गया, अरे कौन से इसमें काम कर रहा हूँ मैं? ओल्ड वाला ओपन किया क्या मैंने?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ उसके बाद में। सो प्रोफेशनल, सर मैंने आपको एक और भेजा था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं कॉपी कर लेंगे बाद में। ओके सर। तो अभी यहाँ पे क्या है, वी आर टॉक, हमारा ऑडियंस कौन है, वी आर गोइंग टू टॉक टू एवरीवन, राइट, एंड एवरीवन इन द सेंस लाइक वी आर गोइंग टू यूज अ डिजिटल सर्वे, हम गूगल सर्वे यूज करने वाले हैं। अब ये सर्वे कहाँ जाएगा किसको पता है, चाहे तो हम व्हाट्सएप पे डालें, चाहे फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, जिधर भी लिंक डालें सब लोग भर पाएंगे, यस राइट। सर। यस तो सर। हमको इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, रूरल में हमको एक ऑप्शन देना चाहिए अप टू ग्रेजुएशन, राइट, या अप टू 12th HSC लिखते हैं, यस। राइट, अप टू HSC सब कुछ आएगा उसमें, राइट, देन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अबो पोस्ट ग्रेजुएट, राइट, ये अब ठीक रहेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. देन नेक्स्ट क्या है, ये को छोड़ दो। हाँ, इसमें हमने बोला था कि हम इसमें एक और ऑप्शन डालेंगे, कि क्या बोला था मैंने इसमें आपको, विच वैक्सीन ब्रांड यू विल प्रेफर, राइट। तो इसमें क्या क्या आएगा, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन वैक्सीन, कोविशील्ड, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ मुझे। COVIDSHIELD। इसका कोवैक्सीन के बराबर है क्या, इसमें ई आएगा शायद, आई डोंट नो, चेक कर लेंगे इसको बाद में, चलो जब हम गूगल फॉर्म में जाएंगे तो। नेक्स्ट क्या है, स्पुतनिक था, सर बस 2 ही ऑप्शन तो होंगे सर। स्पुतनिक था ना, इंडिया में आया है, ओके Yes, सर। sir. आया है. राइट। चलो ये भी रखते हैं, एंड कोई और एक होगा तो उसको हम फॉर्म के टाइम पे लेते रहे, तो फिर ये हट जाएगा, इसका हमको जरूरत नहीं है। आई थिंक बाकी सब हटा देते हैं, राइट। तो ये हमने बात कर ली है सब। तो ये हो गए हमारे ऑप्शंस, राइट। तो इसको अब हम डालेंगे गूगल फॉर्म में, एंड हाउ, इधर हाउ ओल्ड आर यू, ये हमारा क्लासिफिकेशन आ गया, फटाफट समझ लो। दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना स्क्रीन में, No, sir. राइट। तो यहाँ पे, देन यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपलसरी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन क्विकली वी विल ऐड दिस, एंड ये कैसे जाएगा, दिस वे, यहाँ पे कंपलसरी ऑप्शंस, सिंगल, मैरिड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, फैमिली, इनकम। तब तक कोविशील्ड का उसका वैक्सीन का स्पेलिंग ढूंढो। ये जाएगा यहाँ पे अप टू 5 लाख, फिर ये अगर आप वेरिएबल जब भी आप रिसर्च करोगे, SIP का रिसर्च हो या आपका कभी कोई रिसर्च पेपर लिखने का आपको इच्छा हो, आप लिखना चाहते हो, तो you have to list your variables in Excel sheet like this, so that it will be easy for you to copy paste it in a WhatsApp. अब यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, ये कौन सा ऑप्शन है, ये किसी सिलेक्ट कर पाएगा, वो दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। अपने आप आते जा रहा है ये सब वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से क्या है, ऑक्यूपेशन, इधर जाएगा फिर स्टूडेंट, नेट स्लो हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्यूपेशन, यहाँ पे मुझे मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करना चाहिए, फिर यहाँ स्टूडेंट। अगर मैं मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो वो आएगा नहीं, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में जाएगा एम्प्लॉयड, नेक्स्ट ऑप्शन में जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाएगा प्रोफेशनल, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड होगा, then we will talk about this particular thing which is educational level, then we will have an option of up to HSC, undergraduate,
then postgraduate, and then above postgraduate, right? Then उसको compulsory and this will we will add. Next question is about which vaccine. इसको हम ठीक कर लेंगे उधर ले जाके. VACCINE. Which vaccine brand you will prefer, right? क्या है स्पेलिंग, क्या है कोवैक्सीन का स्पेलिंग क्या है? तो कोवैक्सीन की स्पेलिंग है COVACCINE. कोविशील्ड का? COVISHIELD. हाँ ये बराबर है. एंड स्पुतनिक का? वो नहीं देखी. सर कोवैक्सीन का स्पेलिंग हम दूसरा देख रहे हैं. COVAXIN. शायद XINE है. यस सर XIN. एंड कोविशील्ड का भी ये बराबर है. ठीक है, छोड़ो इसको, देख लेंगे. राइट, ये हो गया. अब आपको जाना है आपके वेरिएबल्स में, जो आपके ये सही है क्या? ये ठीक है, दिस पर्टिकुलर फाइल शायद ठीक है. ये फाइनल वेरिएबल से जो हमने डिस्कस किए, राइट? नहीं, ये नहीं है. दिस इज नॉट द फाइनल वन. No sir, this one is not. सिमिलर तो है. सेम शीट भेजा है आपने, सेव नहीं किया था क्या उस दिन? सर लैपटॉप में सेव है बट मैं सेंड कर रही हूँ तो वो जा रही है. मैं डायरेक्ट लैपटॉप से देखती हूँ, सेंड कर रही हूँ. तो मैं मोबाइल में लेके सेंड की ना तो. अरे नहीं, उस दिन जो फाइनल किया था हमने हाँ discuss सर फाइनल है सर. अभी वही वाला मैं लैपटॉप में खोल रही हुई हूँ. उसमें सर शो कर रहा है, लेकिन इसमें आपको जो मैंने भेजा दूसरा जा रहा है. फाइनल वेरिएबल सेव हुए है क्या? यस सर सेव है. भेजो भेजो, कॉपी पेस्ट करो. डेस्कटॉप में नया फाइल लो. सर भेज रही हूँ. अभी आप सब ये जो देखा आपने जस्ट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड type of variables, type of data and type of options we are putting for the respondents. इस पे ज्यादा फोकस करो, राइट? इसमें क्या है, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी. यहाँ पे आपने 60 लिख दिया, यहाँ पे अगर आपने 61 लिख दिया तो 60 के और 60 बीच में कहा जाएगा, 61 के बीच वाला कहा जाएगा, राइट? ये सब चीजों को थोड़ा फोकस करो. अगर आपको इसको व्यू करना है तो एक बार याद देखो कैसा दिखेगा आपका गूगल फॉर्म. दिस इज योर सर्वे. यहाँ पे वो टाइप करेगा, स्टार मतलब रिक्वायर्ड, ये सब रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है. रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल, ये सब चीजें अभी आपको इस तरीके से दिखेगी. और वो रिस्पोंडेंट्स कैन सिलेक्ट वन ऑप्शन ऑफ दिस, दे कैन नॉट गो फॉर चेक बॉक्स, राइट? यहाँ पे चाहिए तो हम चेक बॉक्स दे सकते हैं, बट वी आर आस्किंग विच ब्रांड इज प्रेफर्ड. तो प्रेफर्ड में तो एक ही आएगा, राइट? अगर हमको रैंकिंग चाहिए तो वी कैन आस्क टू रैंक दिस अकॉर्डिंग टू. हम रैंकिंग भी ले सकते हैं इसका, राइट? रैंकिंग कैसे हो सकता है? तो सिमिलर क्वांटिटेटिव डेटा, इसको ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डेटा, ये क्वालिटेटिव डेटा है, इसको हम ऑर्डिनल में भी देख सकते हैं. जैसे स्केल के लिए हम 5 पॉइंट लिकर स्केल यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे रेटिंग स्केल भी, रैंकिंग स्केल भी यूज कर सकते हैं. रैंकिंग स्केल कैसे, कोएफिशिएंट को 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, इसको 3 नंबर दूंगा. कोई ऐसा होगा बोलेगा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस स्पुतनिक है, सेकंड प्रेफरेंस कोवैक्सीन है, थर्ड प्रेफरेंस कोविशील्ड है, राइट? बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर वेरिएबल इन एनालिसिस, आप किस तरीके से उसको एनालाइज करना चाहते हो उसके बेसिस पे होता है विच काइंड ऑफ ऑप्शंस यू आर गिविंग टू योर रिस्पोंडेंट. तो यहाँ पे हम क्या क्या रिस्पॉन्सेस को ऑप्शन दे सकते हैं? वी कैन मेक इट एज अ स्केल आल्सो, रेटिंग स्केल, रैंकिंग स्केल, जिस तरीके से चाहिए हम ले सकते हैं एक ही वेरिएबल. ऐसा नहीं कि उसको आप सिर्फ नॉमिनल में डाल दिया क्वालिटेटिव डेटा में, तो वही एक ऑप्शन बचता है. I was telling you that we can measure the variables
एज पर आर रिक्वायरमेंट इन अ वेरियस स्केल। एक वेरिएबल को बहुत सारे स्केल पे मेजर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सर आपका नेट बंद है क्या? व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया, सिंगल टिक शो हो रहा है। मैंने भेजा तो है, नेट तो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, मतलब ये चल रहा है, मतलब नेट चल रहा है। तो एक बार आप चेक करो अपना व्हाट्सएप। मुझे लगता है सिमिलर ही फाइल भेजा है आपने। और अगर आपने सेव नहीं किया है ना तो गड़बड़ हो गया है पूरा, मतलब समझ लेना। सर सेव है सर, मेरे लैपटॉप में सेव है, तो मैंने वही वाली फाइल आप लैपटॉप से कॉपी पेस्ट करके देखिए, भेजिए, एक बार आप चेक करके देखो, मे बी इसमें कुछ चेंजेस हो। एकदम एक पूरा सेशन अपना गूगल फॉर्म में चला गया। नेम चेंज करो ना उसका, सेव करो उसको डेस्कटॉप पे। यस सर, चेंज करें। शायद ये हो। ओके, यस सर, तो ये है अपना फाइनल लिस्ट। अभी आपको बताता हूँ, फिर मैं अभी एक ही करके दिखाता हूँ, एक स्लॉट। अभी एक चीज याद रखो, देन मैं सब बाद में घर पे बैठ के करूंगा और आपको लिंक शेयर करूंगा, वो आप लोग कर लेना, या फिर मेरा लॉगिन आईडी किसी को दे दूंगा, द वन हु कैन गो एंड चेंज दोस थिंग्स। सो लेट मी नो इफ समवन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड टू कंप्लीट दिस सर्वे। दूसरा ऐसा है, परसेप्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अभी हमको क्या चाहिए, ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो गया। वी हैव गॉट दिस डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये जो हमको डेमोग्राफिक में चाहिए था, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली। एंड दिस वेरिएबल्स वी हैव आल्सो चेक कि ये वेरिएबल्स कौन से कैसे कौन से स्केल में है, क्या है, ये वो सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया, राइट। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन डिलीट करना है वो एडिट भी कर सकते हो एनी टाइम, एनी ऑप्शन, एनी क्वेश्चन कैन बी एडिटेड व्हिच विल बी ऑटो सेव टू द गूगल फॉर्म, राइट। यहाँ पे जो होगा वो अपने आप वो लिंक पे ऑटो सेव होगा। बाद में आपने सर्वे लिया, फिर आपको अगर पता चला कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, फिर आपको इसमें कुछ वेरिएबल्स चेंज करने, वो चेंज करने वो लिंक पे अपने आप सेव हो जाएगा। दिस लिंक विल नेवर चेंज, ये वैसे ही रहेगा। आप जितने चेंजेस करोगे वो अपडेट होते रहेगा अपने आप, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी वांट टू टेक इन टर्म्स ऑफ, ये डेटा कौन सा है जल्दी बताओ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ओपिनियन ले रहे हैं हम, क्वालिटेटिव ओपिनियन है, यस सर। राइट। क्वालिटेटिव में स्केल कौन सी है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है? सर क्वालिटेटिव में स्केल कौन सा है? ये जो स्केल है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल है? नॉमिनल का मतलब क्या है? सर डेटा यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। नॉमिनल का मतलब है डेटा द वेरिएबल विच ओनली कैन बी ग्रुपिफाइड, राइट। द इंफॉर्मेशन विच यू आर कलेक्टिंग ऑन विच यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। ये सब वेरिएबल नॉमिनल है, इसमें मैथमेटिकल। कैन यू से दैट दिस इज डबल देन दिस, या फिर this particular divided by this is something, some logical answer you will get it. इससे इसको No, डिवाइड sir. किया तो कुछ लॉजिकल आंसर मिलेगा क्या? हो जाएगा। No, अगर sir. डिवाइड भी हो गया तो आंसर लॉजिकल नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज नॉमिनल डेटा विच यू आर ओनली, नॉमिनल डेटा which we are using to only groupify the characteristics of your respondent, right. तो दूसरा डेटा है ओपिनियन बेस्ड डेटा, ये क्वालिटेटिव डेटा है, बट आर वी ग्रुपिंग और आर वी अरेंजिंग इट इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? Is this a ascending descending order or group of? No, sir. It's a group of opinion. ये ग्रुप है या ऑर्डर है? कैन यू से दैट people those who are strongly disagree for this variable are less prone to go for vaccine? ऐसा बोल सकते हो नहीं बोल सकते? No, sir. अरे बोल सकते हैं ना, अगर किसी चीज के लिए डिसएग्री है लोग तो वो वैक्सीन नहीं लेने जाएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते क्या? यस सर। राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल के लिए
रिस्पोंडेंट के ओपिनियन को हम एक ऑर्डर में रख रहे हैं, एंड राइट इफ यू गिव द नंबरिंग टू दिस ऑर्डर, राइट, तो मैंने उस दिन आपको बताया था ना 3.5 अगर आता है तो 3.5 के ऊपर आता है मतलब यहाँ चला जा रहा है उसका ओपिनियन, राइट, समवेयर हियर। और आप लॉजिकल आउटकम निकाल सकते हैं बाय डूइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन दिस 5 पॉइंट्स, इजंट इट? मीन निकाल सकते हो, राइट? Yes, sir. और इसके लिए मीन 2 आ गया और इसके लिए मीन 4 आ गया, तो यू कैन से दैट दिस people are double like opinion of people is double stronger for this variable than this particular one. बोल सकते कि नहीं बोल सकते, राइट? सो दिस इज अ ऑर्डिनल स्केल, इसमें यू आर पुटिंग द ऑर्डर ऑफ ओपिनियन ऑफ रिस्पोंडेंट्स फॉर वेरिएबल। ये क्या है? ये ऑर्डिनल स्केल है। एंड हाउ दो दिस इज क्वालिटेटिव डेटा, this is ordered in some sequence which is ascending and descending. इधर से इधर जाओगे तो ascending है, इधर से इधर आओगे तो descending है, right? So this is ordinal nominal data. ये कौन सा डेटा है? ऑर्डिनल नॉमिनल नहीं, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डेटा। ऑर्डिनल नॉमिनल हो ही नहीं सकता, राइट? समझ में आ रहा है क्या? सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर, जो भी आपने explain कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। यू हैव 2 पैरामीटर्स टू मेजर क्वालिटेटिव डेटा, राइट? यू हैव 2 स्केल्स टू मेजर क्वालिटेटिव डेटा। कौन से? एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल, राइट? नॉमिनल में क्या कर सकते हो? ओनली ग्रुपिंग कर सकते हो, और अगर आपने ग्रुपिंग करके उसको नंबर दे भी दिया, फॉर एग्जांपल समझने का कोशिश करो नॉमिनल किसे बोलते हैं। मैंने मेल को, मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको सिंगल को 1 नंबर दे दिया, और मैरिड को 2 नंबर दे दिया, राइट? और मैंने क्या किया, 50 लोगों को पूछा। 50 लोगों को पूछने के बाद 1 नंबर क्या है 10, 2 नंबर क्या है 40 रिस्पॉन्स। वो नंबर को मैं अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करूंगा, डिवाइडेशन करूंगा, सेपरेशन करूंगा, तो कुछ लॉजिकल आंसर मिलेगा क्या मुझे? कैन आई No, से sir. दैट हाफ लाइक 10 लोगों ने एक सिंगल सिलेक्ट किया तो 10 सिंगल का स्कोर आ गया 10, और 40 लोगों ने मैरिड सिलेक्ट किया तो उसका कितना आएगा? उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। सो 2 into 40 80 हो गया। सो 80 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा मैं कुछ करूंगा तो मुझे लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा, राइट? सो दिस इज नॉमिनल डेटा विच ओनली हेल्प्स यू टू ग्रुपिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर रिस्पोंडेंट, राइट? नॉमिनल है तो क्वालिटेटिव ही, बट आप उसको कुछ लॉजिकल इंफरेंस नहीं निकाल सकते। बट क्वालिटेटिव डेटा को अगर आप ऑर्डिनल पे रखते हो, लाइक दिस, तो क्या होगा? यहाँ पे आप उसको नंबरिंग देते हो, तो इस नंबरिंग को आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके मीनिंगफुल आउटकम निकाल सकते हो। दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। टाइप ऑफ डेटा इज क्वालिटेटिव ओनली। टाइप ऑफ डेटा क्या है? क्वालिटेटिव ही है। फिर भी क्वालिटेटिव डेटा को अगर आपको क्वांटिफाई करना है और मीनिंगफुल आउटकम निकालने हैं तो उसको आपको ऑर्डिनल स्केल पे मेजर करना चाहिए, राइट? सो दिस इज क्वालिटेटिव डेटा मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल फॉर conducting mathematical operations to reach to the understanding towards perception of people for those points. इसको आप परसेप्शन जानना है, इसके लिए हम उसका ओपिनियन ऑर्डर कर रहे हैं, जिसको नंबर असाइन करके हम उसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज पीपल थिंकिंग अबाउट दोस वेरिएबल। समझा? Yes, sir. So qualitative data measured in ordinal scale, and these scales are called as 5-point Likert scale, right? ये scales कौन से? 5-point Likert scale बोला जाता है। इसमें ओपिनियन आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, एग्रीमेंट आएगी, इंटरेस्ट आएगा, हर कोई कंज्यूमर परसेप्शन या बिहेवियर का फैक्टर है, उसको आप 5-point Likert scale से मेजर कर सकते हैं। हाउ लाइकली यू आर विजिट टू डिज्नी, हाउ लाइकली you will visit to Statue of Unity? So most likely never, neither, never इधर आएगा, most likely 5 में चला जाएगा, right? So likeliness, happiness, your satisfaction, your rating, your opinion, your preference, all those things can be measured on 5-point Likert scale, right? So to measure qualitative data in the form of customer's opinion, we use 5-point Likert scale to convert opinion of your respondents in numbers.
हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर का ओपिनियन जो है उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये स्केल पे डाल रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी वांट अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इजंट इट? तो सोशल सर्वे में Yes, sir. हम जो कस्टमर्स और रिस्पोंडेंट्स का ओपिनियन होता है उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करने के लिए स्केल यूज करते हैं। कोई चीज को मेजर करोगे तो तभी तो रीडिंग आएगी उसकी, मेजर करोगे तो रीडिंग आएगा। तो ओपिनियन मेजर करने के लिए हम ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल्स यूज करते हैं, राइट? सो अगर किसी को कुछ डाउट है ना तो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे यूट्यूब पे जाके थोड़ा देख लो। सिंपल सी चीज याद रखो, these all qualitative information and we want to convert it to the quantitative information, because without quantitative information we cannot reach to a proving or disproving something, right? So ये कौन सा डेटा है? This is qualitative data converted into ordinal scale for making it quantifiable. So this is qualitative ordinal scale. So we will go to this particular question survey now. यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे लिए? अभी एक चीज याद रखो, स्केल में जब जाएंगे, लीनियर स्केल, हमारा डेटा कौन सा है? दिस इज लीनियर स्केल। लीनियर मतलब क्या? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन वन डायरेक्शन, राइट? कंटिन्यूअस इन वन डायरेक्शन ही है। Yes, sir. Yes, no? Okay. So this is linear scale, right? अगर हम linear scale डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एक ही ऑप्शन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है? We have a grid, हमारे पास टेबल है, हमको इसी ऐसा ही दिखना चाहिए हमारे लिए, राइट? फिर यहाँ कस्टमर ओपन, क्योंकि ग्रुपिफाइड है ये, दिस 5 वेरिएबल्स आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हम यहाँ पे जाएंगे, विदाउट सिलेक्टिंग लिनियर डेटा वी विल गो टू मल्टीपल चॉइस ग्रिड। अब ग्रिड कैसे तैयार होगी देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये मैं फिलहाल क्वेश्चन में लिखना चाहिए था हमने, कस्टमर को इससे क्लैरिटी, कंज्यूमर को इससे क्लैरिटी नहीं आएगी तो हम इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे ये आएगा, तो ये रोज में क्या आएगा? दिस पर्टिकुलर थिंग, सॉरी अरे हो जाएगा, फिर लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक, ये सब ऑप्शंस में ले रहा हूं एंड मैं इसके लिए एक ग्रिड तैयार करने वाला हूं जहाँ पे वो आंसर नोट कर सके, राइट? ये मेरा रोज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? रोज में है ना, ये रोज ही है ना, राइट? Yes, 5 sir. आवर्स रोज, राइट? रोज में ये आया और कॉलम में क्या आएगा? ये आना चाहिए, राइट? तो कॉलम में कैसा आएगा? फर्स्ट कॉलम में क्या आना चाहिए? स्ट्रांगली डिसएग्री। सेकंड में क्या आना चाहिए? डिसएग्री। थर्ड में क्या आना चाहिए? नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री। फोर्थ में आ जाएगा एग्री, राइट? और 5 में आ जाएगा स्ट्रांगली एग्री। तो स्ट्रांगली एग्री यहाँ पे आएगा। अब ये जब आप इसको लॉक करोगे और इसको देखोगे, व्यू में जाके जब देखोगे इसको, तो ये कैसा दिखेगा देखना। आप जब गूगल फॉर्म में भरते हो ना सर्वे, ये देखो, Yes, sir. राइट? इट लुक्स लाइक दिस। अब क्या करेगा रिस्पोंडेंट? क्या करेगा? यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे एक क्लिक करेगा, option। यहाँ पे क्लिक करेगा, Yes, ये एक sir. ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा इसमें से, राइट? और इसको हमने क्या किया है? 1 2 3 4 5 बोला है, मतलब इसके बारे में रिस्पोंडेंट का जो ओपिनियन है वो उसको हम क्वांटिफाई कर रहे हैं। यस, Yes, sir. सो Yes, sir. एक चीज याद रखो, to quantify the qualitative information provided by your respondents, you can use ordinal scales. समझा? Yes, sir. अनऑर्डिनल स्केल्स कौन से हैं? सेटिस्फैक्शन, ओपिनियन, ये वो सब। अब इसमें 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट स्केल्स हो सकते हैं, राइट? इफ यू रियली वांट टू मेजर द ओपिनियन ऑफ योर रिस्पोंडेंट्स टू मच इन डीप, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस को इंक्रीज कर दो, राइट? तो 5 पॉइंट है इसलिए 5 पॉइंट बोला, अगर और 2 ऑप्शन और डाल दिए इसने, स्ट्रांगली एग्री, एग्जांपल दे रहा हूँ, स्ट्रांगली एग्री, मतलब कुछ वैसे तो लिख नहीं सकते, बट कोई और ऑप्शन दे दिया आपने स्ट्रांगली एग्री के भी आगे का, यहाँ पे भी कोई और दे दिया नीचे वाला, राइट? तो 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट स्केल्स यूज किया जाता है जनरली। तो जनरली मैक्सिमम यूज इज 5 पॉइंट, ये थोड़ा मॉडरेट है, राइट? रिस्पोंडेंट्स को भी इजी जाता है, डेटा कलेक्ट करने वाले को, रिसर्चर को भी इजी जाता है। 10 ऑप्शन देगा तो रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ आंसर करो, isn't it? So the 5 point Likert scales, Likert scale, Likert is a scientist, उसने डेवलप किया था ये स्केल,
how to quantify the information provided, qualitative information provided by respondents into a numbers. तो उसने ये स्केल असाइन किया, मैं ये चीज मेजर कर रहा हूँ, व्हाट आई एम मेजरिंग एक्चुअली इज दिस, ये मेजर करूंगा। किसी को सीधा बोलूंगा, जाके पूछूंगा कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव, अगर मैं इसको बिना स्केल का पूछूंगा तो वो हाय मैं बोल देगा, खत्म, राइट, उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा, फिर उसको नॉमिनल में देते चला जाएगा। सो इफ आई वांट टू क्वांटिफाई दिस इंफॉर्मेशन इनटू नंबर्स, आई नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर स्केल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर चाहिए, बड़ा प्रिसाइज क्वेश्चन चाहिए, इससे ये नहीं पता चल जाता है परसेप्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने ये लिखना चाहिए, गिव योर ओपिनियन टुवर्ड्स प्रोडक्ट पैरामीटर्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, सही है ना? या फिर समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, व्हाट इज योर ओपिनियन? Yes, sir. Yes, sir. About COVID-19 vaccine product, right? अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता है तो देखो यहाँ पे अपने आप सेव हो जाएगा। तो ये अपने आप सेव हो गया, राइट? तो यहाँ पे क्या है, व्यू में क्या दिख रहा है अभी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्ट, तो राइट यहाँ पे वो बोलेगा अभी, मोस्ट प्रिसाइज है। So this way you can create surveys in Google and you can now you will go to the next grid. अब next grid क्या है, similar, ये है similar चीज, यहाँ पे जाएगा, इधर लगेगा प्रोडक्ट नाइन वैक्सीन प्राइसिंग, राइट, एंड फिर we will create a grid, मल्टीपल चॉइस नहीं है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है अपना, राइट? तो ग्रिड में जाके हम ये इंफॉर्मेशन डालेंगे, इस तरीके से वो पूरा का पूरा सर्वे तैयार हो जाएगा। एंड ये सर्वे का हम शेयर करेंगे टू टेक द रिस्पॉन्सेस फ्रॉम पीपल, क्लियर? Sir. ओके, अंडरस्टूड? कुछ डाउट? No, sir, till here clear. ओके, ऐसे ही बोल रहे, टाइम हो गया इसलिए तो क्लियर नहीं बोल रहे हो ना? No, sir. हेलो हेलो रेस्ट ऑल, 8 लोग एक Yes, लाख। Yes, sir, clear है। आयुष गुप्ता, शेजल अग्रवाल, साहिल, साहिल समझ में आया क्या? हेलो साहिल, साहिल जी, कैन यू हियर मी? वो है ही नहीं शायद इधर। साहिल, कैन यू हियर मी? चलो, आई होप दिस वुड नॉट हैव बीन अ टाइम वेस्ट, समझ में आया होगा और यूजफुल भी है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर, मैं ये शेयर कर देता हूँ कवलजीत आपके साथ लिंक बना के, Yes, फिर sir. हम Okay, उसको sir. अपलोड कर देंगे, लेट पीपल गिव रिस्पॉन्सेस, बाकी का बाद में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, Okay, sure, sir. चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir.